So we are starting with oogenesis in a female reproductive system. Now we are starting with oogenesis. So what is the meaning of oogenesis and where it is take place? So in a female reproductive system of a human, inside a female, there is a presence of primary organ that is called it as a ovary, and inside that ovary, under the influence of FSH, that is follicle stimulating hormone, there is a ovum production. Okay, there is a uh, ovum production is a take place, and this full process is called it as a oogenesis. Okay, so now you can see in this process, what is the meaning of oogenesis? It is a process of formation of haploid female gamete. Now here also a gamete form, that is a ovum. Ovum contain nucleus, and that nucleus of the female gamete ovum contain 23, means only one set of chromosome. This is called it as a haploid female gamete, that is egg or ovum from diploid germinal epithelium. So where the diploid germinal epithelium are located? So we have seen that ovary. So TS of ovary, okay, TS of ovary, that outer part of ovary consists of germinal epithelium part, and from that germinal epithelium there is a oogenesis that take place, and then there is a haploid female gamete, that is a ovum is formed. Now the next point, it involves the process of meiosis and mitosis also. Okay, and mitosis, but the main part is meiosis. So the oogenesis is take place with the help of meiosis. Oogenesis process can be also divided into a 3 stage as like a spermatogenesis. जैसे हमने spermatogenesis में लिया था, वैसे ही oogenesis के अंदर भी ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, और वहां पर भी देखो नेम भी सेम है, दैट इज multiplication phase where the numbers are increasing, growth phase, now the cell are increased in the size, and a maturation phase which will consist of meiosis 1 and meiosis 2 division. Now we are moving to a next topic, next part, that is first part of oogenesis, that is called it as a multiplication phase. Okay, first part, that is, now you can see this diagram. ये भी diagram आपको spermatogenesis से पूरा का पूरा similar लग रहा होगा. Only the difference is that this part, जो meiosis 2 के बाद वहां पर sperm like structure का formation होगा, और थोड़े से naming, that is यहाँ पर देखो पहले तो ये सब नेमिंग सेम ही है. Now you can see that this left side the naming is same. First phase multiplication phase, that is mitosis division, then second growth phase, third phase maturation phase. ये पूरा का पूरा name same है. Only the difference is on this part. Now you can see that is a primary germinal epithelium cell. ये तो name same है. That is 2n number भी same है. That is diploid number of chromosome. वहां पर स्पर्मेटोगोनिया था, और यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है आपको, oogonia. देन वहां पर हमने लिखा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हियर प्राइमरी oocyte, मींस oogenesis से रिलेटेड जो भी वर्ड है वो यहाँ पे यूज करना है. Okay, so this is all about that diagram. Both the diagram are 95% same, only the name in a difference, and some of there is a secondary polar body are formed in a oogenesis. वो थोड़ा सा difference. Okay, थोड़ा सा ही difference है, और पूरा का पूरा part same ही. So now the first and second part is fully same, only the name is changed. Now you can see that multiplication phase. Multiplication phase में क्या होगा? Now you can see this diagram. This first part, that is a primary germinal cell, that is 2n number, that is diploid number of chromosome. Okay, diploid number of chromosome. So here that primary germinal cell undergoes mitotic division and the number are increasing. वहां पर भी वैसे ही हुआ था. So at this stage of multiplication stage, primary germinal cell, which is 2n, that is diploid number of ovary, undergoes repeated mitotic division, means so many types they are dividing with the help of mitosis. Now you can see in this diagram, first time mitosis, second time mitosis. So it will undergo the repeated mitotic division to form millions of gamete mother cell, or it is also called it as a oogonial cell, means in a multiplication phase primary germinal cell is converted into again diploid. This is mitosis division, and we know that
mitosis is a one type of a equational division where the chromosome number is a similar. So यहाँ पे देखो ये 2n नंबर क्रोमोसोम था डिप्लॉयड, और उससे जो ऊगोनिया फॉर्म हो रहा है सेल, उसके अंदर भी कितना है 2n, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. सो दैट इज ओनली मल्टीप्लीकेशन हुआ है. सो इसीलिए ये फेज को नाम दिया है मल्टीप्लीकेशन फेज, एंड द डिवीजन कौन सा हो रहा है, माइटोसिस. देन दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द ह्यूमन फीमेल. सो नॉर्मली इट इज नॉट स्टार्ट एट द प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी के टाइम नहीं होगा. तो उस बेबी का बर्थ होने के पहले, ओके, चाइल्ड बेबी का बर्थ होने के पहले ही उनके बॉडी में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. तो वही दिया है एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द ह्यूमन फीमेल, मींस वो बेबी का बर्थ होने के पहले ही उसके बेबी के बॉडी के अंदर जो ओवरी है वहां पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. बट मेल के अंदर ऐसे नहीं है. मेल के अंदर ये प्रोसेस कब होगा, प्यूबर्टी के टाइम ही स्टार्ट होगा. नाउ द सेकेंड पार्ट, growth phase, which is also similar, only the difference in a name. Now you can see that growth phase. In a growth phase, okay, in a growth phase, that oogonia cell, that is 2n number, is again converted into primary oocyte, which is also 2n number. Only the difference is that they are increase in the size. Now you can see the compare that. Okay, so out of that 4 oogonia, only one of them stop dividing and it is increase in the size. Means यहाँ पर जितने भी है उसमें से सिर्फ एक क्या होगा, साइज में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब इसके अंदर डिवीजन स्टॉप हो जाएगा और इनके अंदर डिवीजन होता ही रहेगा. सो वही पार्ट दिया है. Some of the oogonia stop division and begin to increase in a size, फॉर्म अ प्राइमरी oocyte. और वो क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी oocyte. मतलब ये इतने सारी oogonia हैं, ये सभी डिवीजन करते रहेंगे तीनों, बट इसमें से एक oogonia क्या हो रहा है, सो दैट वन oogonia विल इंक्रीज इन देयर साइज. वो उसका साइज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंड इट इज कन्वर्टेड. साइज इंक्रीज मींस क्या है, सेलुलर ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी apparatus, देन माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन नंबर. सो ये जो पार्ट है यही सबका क्या होगा, इनका साइज में इंक्रीज होगा, नॉट द डिवीजन. यहाँ पे कोई भी टाइप का डिवीजन नहीं होगा. ये आगे जाके जो डिवीजन होने वाला है उसके लिए ये इसके अंदर के जो सेलुलर कंटेंट है, सेल ऑर्गेनल्स है, उनको साइज में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ओके, सो उनके नंबर्स में भी इंक्रीज कर रहा है, बट सेल साइज में इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर. सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ ग्रोथ फेज, एंड इन दिस फेज oogonia diploid number is converted into primary oocyte, which is again also a diploid. Now the next last part, that is last stage, maturation phase. Maturation phase, now you can see in this diagram, maturation phase is divided into two parts, meiosis 1 and meiosis 2. In that, meiosis 1 is reduction division, means the chromosome number is half. Now you can see that primary oocyte, when it undergoes a meiosis 1, so it is converted into n नंबर, दैट इज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जा रहा है. सो ये रिडक्शन डिवीजन है, और फिर इसके अंदर ही फिर से क्या होगा, मियोसिस 2, और फिर आगे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. सो वही पार्ट ये देखो, मैच्योरेशन फेज. oogenesis take place in ovary. This process initiated prior to birth of a female. The primary oocyte, okay, ये प्रोसेस भी कब स्टार्ट हो जाएगा, सो फीमेल का जो बेबी है जिनके बॉडी में ये हो रहा है उनके ओवरी के अंदर, सो अल्टीमेटली उस बेबी का बर्थ होने के पहले ही मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया है. बट ओनली डिफरेंस क्या है, ओनली हाफ प्रोसेस होगा, ओनली हाफ प्रोसेस होगा, और फिर ये स्टॉप हो जाएगा, और फिर प्यूबर्टी का एज आने के बाद आगे का प्रोसेस होगा. तो वही पार्ट दिया है. सो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया बर्थ होने के पहले. सो द प्राइमरी oocyte, that is this cell, now you can see this diagram, primary oocyte, that is 2n number of chromosome, that is diploid number of chromosome, enters the maturation phase, which includes the meiotic division, that is meiosis 1 and meiosis 2 division. Now the diploid primary oocyte undergo
undergoes meiosis 1, that is reduction division. Now can see this diagram, ये जो प्राइमरी oocyte है इसके अंदर meiosis 1 रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. सो ये जो 2n नंबर है रिडक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा n और n में. नाउ कैन सी दैट ये जो फॉर्म हुआ है सेकेंडरी oocyte, यहाँ पर n नंबर क्रोमोसोम और यहाँ पर जो फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हुआ है यहाँ पर n नंबर. मींस आउट ऑफ दैट 46 क्रोमोसोम 23 chromosome, that is one set of chromosome, is come to this side and 23 chromosome that is come to this side. So now these both cell are haploid. So वही दिया है यहाँ पर देखो, the diploid primary oocyte undergo meiosis 1, that is reduction division, to form a two haploid daughter cell. So it will divided into two haploid daughter cell. But the next part, this division is peculiar in a female as both the daughter cell are with a haploid number. मतलब ये दोनों भी जो haploid cell form हुए हैं इनके अंदर 23 क्रोमोसोम है. So that is haploid है. But यहाँ पर डिफरेंस क्या है, you can see that this secondary oocyte is bigger in size और ये वाला जो सेल फॉर्म हुआ है ये क्या है साइज में स्मॉलर है. So why this happen? So when the division is take place at that time, one cell receive nucleus as well as high amount of cytoplasm and another cell receive nucleus as well as only सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. मींस जो डिवीजन हो रहा है साइटोप्लाज्म का वो क्या हो रहा है अनइक्वल डिवीजन हो रहा है. सो वही दिया देखो, बट ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म of the two daughter cell produce, one cell is a larger in size, that is called it as a secondary oocyte. Now you can see that इसका डिवीजन होने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म आ गया और यहाँ पर साइटोप्लाज्म बहुत कम गया है. So ये जो बिगर वाला सेल फॉर्म हुआ that is called it as a secondary oocyte and another small cell is called it as a first polar body. जो दूसरा जो सेल फॉर्म है उसको क्या बोलना है first polar body. Now the next point in that, normally whatever first polar body form at the time of meiosis 1, okay, normally first polar body does not enter meiosis 2. whatever फर्स्ट पोलर बॉडी जो फॉर्म हुआ है ये नॉर्मली आगे के डिवीजन इसके अंदर नॉर्मली नहीं होगा. यहाँ पे दिखा है बट नॉर्मली इसके अंदर आगे का डिवीजन नहीं होगा. वही दिया नॉर्मली फर्स्ट पोलर बॉडी नॉट एंटर इनटू meiosis 2. द सेकेंडरी oocyte proceed meiosis 2 only up to metaphase 2. मीन्स स्मॉल चाइल्ड के अंदर जब ये हो रहा है बर्थ होने के पहले तो ये डिवीजन कहाँ तक होगा तो ये मेटाफेज 2 तक हो जाएगा. सॉरी व्हेन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, सॉरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब भी ये फीमेल के अंदर ये प्रोसेस होगा तो ये प्रोसेस कहाँ तक होगा. सो ये प्रोसेस सेकेंडरी oocyte जो कि n नंबर है इसका कन्वर्जन ये meiosis 2 से होगा और फिर ये कहां तक होगा ओनली मेटाफेज 2. यानी कि इसके बाद में जो एनाफेज 2 है देन साइटोकाइनेसिस 2 है वो सब डिवीजन नहीं होंगे. मींस मैंने आपको बोला था ना कि ओवरी में से जो भी एग निकल रहा है दैट इज नॉट द एग, दिस इज ओवम, दिस इज नॉट द एग, इट इज कॉल्ड इट एज अ सेकेंडरी oocyte. ओके उसको सेकेंडरी oocyte ही बोलना है बिकॉज हाफ ही डेवलपमेंट हुआ है और जो आधा डेवलपमेंट है वो कब होता है जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तब होता है. यानी कि ओवम का फॉर्मेशन, नॉर्मली ओवम और एग का फॉर्मेशन किस टाइम पर होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम में होता है. सो वही पॉइंट है. सो देखो यहाँ पर ये it is a division, this division is further stopped and arrested at the stage of metaphase 2 of a meiosis 2. The secondary oocyte is shed off फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल. मतलब ये डेवलपमेंट जब ओवरी में हो रहा है तो बराबर 14 डेज में जब ओवुलेशन होगा तब का स्टेज यानी मेटाफेज 2 का, मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 होने के बाद वाला जो स्टेज होता है यानी कि वो सेकेंडरी oocyte है पूरा अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है और फिर वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके वहां से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. ओके डन. मैं थोड़ा सा डायग्राम पे चले जाता हूँ वहां पर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. जस्ट अ मिनट, हम लोग डायग्राम पे चले जाते हैं. जस्ट अ मिनट.
नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ओके, ये डायग्राम में देखो, नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ये डायग्राम में क्या हो रहा है, बराबर ओवुलेशन के टाइम ये जो ओवरी है, ये ओवरी में जो oogenesis हो रहा है, ओके, ये ओवरी में, जस्ट मिनट, ओके, नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो ओवरी है, ये ओवरी में जब oogenesis होगा, सो एट द टाइम ऑफ oogenesis बराबर 14 डेज में जब ओवुलेशन होगा, तो ओवुलेशन के टाइम जो स्टेज है वो कौन सा है, यहाँ से जो निकलेगा वो नॉट द ओवम, तो वो कौन सा पार्ट है, सो मियोसिस 2 होने के बाद मेटाफेज 2 तक जो डेवलप हुआ है वो वाला ओवम वाला पार्ट है, इट इज नॉट द एक्चुअली ओवम, वो पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी तक, उसमें एनाफेज 2 और साइटोकाइनेसिस 2 बाकी है। फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है वो क्यों कौन कैच करेगा, फिम्ब्रे, और फिम्ब्रे से ये एम्पुला में आ जाएगा ओवुलेशन के टाइम में, और फिर एम्पुला में जब यहाँ से स्पर्म एंटर होगा और ये एम्पुला में आएगा स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन होने के टाइम में साइमल्टेनियसली फर्टिलाइजेशन और आगे वाला प्रोसेस, मैंने कि अभी हम लोग जो देखने वाले हैं आगे का प्रोसेस, वो पूरा का पूरा साइमल्टेनियसली फर्टिलाइजेशन के टाइम में एम्पुला में होगा। मीन्स ओवरी में जो भी फॉर्म हो रहा है, इट इज नॉट द एक्चुअली ओवम, इट इज अ सम पार्ट, उसका कुछ पार्ट अभी भी बाकी है, वो मेटाफेज 2 के अंदर अरेस्ट हो गया, यानी कि स्टॉप हो गया आगे का डिवीजन, और वो डिवीजन फिर से कब स्टार्ट होगा, जब वो यहाँ पर आएगा एम्पुला में, तब आएगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर मेन स्लाइड, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ओके, मैच्योरेशन फेज पे थे हम लोग, ये स्लाइड पे, नाउ कैन सी दैट, फिर से हम लोग वही पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी oocyte प्रोसीड मियोसिस 2, ये जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ है, फर्स्ट पोलर बॉडी में तो डिवीजन नहीं होगा मियोसिस 2, सिर्फ सेकेंडरी oocyte में होगा, सो दिस सेकेंडरी oocyte एंटर इनटू अ मियोसिस 2, बट ये डिवीजन कहाँ तक होगा, सिर्फ मेटाफेज 2 तक होगा, इट्स डिवीजन इज फर्दर स्टॉप एंड अरेस्टेड, और मेटाफेज 2 में जाने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, और उस टाइम जो सेकेंडरी oocyte है वो शेड ऑफ होके ग्राफियन फॉलिकल यानी कि जो मैच्योर फॉलिकल फॉर्म होता है, जब वो शेड ऑफ होगा तो वहां से जो सेकेंडरी oocyte है वो वहां से निकल के ओवुलेशन के टाइम कहाँ पे आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में आ जाएगा। देन the restart and completion of meiosis 2 will happen with the entry of sperm, means आगे का जो प्रोसेस है meiosis 2 के बाद वाला, वो कब स्टार्ट होगा, जब एंट्री होगा स्पर्म का, कहां पर एंट्री होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम जब स्पर्म एक के अंदर उस सेकेंडरी उस साइड में एंटर करेगा, उस टाइम आगे का कंप्लीशन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दिस लास्ट फेज इज यूजुअली कंप्लीटेड इन एम्पुला, जो नेक्स्ट पार्ट है वो कब कंप्लीट होगा, so it is, just a minute, okay, the last phase is usually, just a minute, okay, so that last phase is usually completed in ampulla of a fallopian tube at the time of fertilization, मतलब फर्टिलाइजेशन जब भी होगा तो उस टाइम आगे का प्रोसेस, यानी मियोसिस 2 का जो एनाफेज 2 देन साइटोकाइनेसिस 2 जो रह गया था, वो आगे का प्रोसेस साइमल्टेनियसली कंप्लीट होगा फर्टिलाइजेशन के साथ में, स्पर्म के एंट्री के बाद। ओके, देन दिस डिवीजन इज ऑल्सो द टू अनइक्वल डॉटर, सेम थिंग देखो यहाँ पर मियोसिस 2 के अंदर जैसे डिवीजन हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी डिवीजन होगा, जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस का डिवीजन बराबर होगा, न्यूक्लियस दोनों भी सेल में जाएंगे बराबर 23 क्रोमोसोम, बट cytoplasm in a one cell is a larger and the cytoplasm in another cell is a small amount, so जो larger cell is formed, okay, two unequal daughter cell are formed, in that larger cell is called it as a ovum
only one ova or ovum is formed in a female at the time of meiosis or at the time of oogenesis. And the small cell is formed, that is called it as a secondary polar body. यानी कि ये सब जो फॉर्म हुए हैं वो सब क्या है, सेकेंडरी पोलर बॉडीज है. ओनली वन एग इज फॉर्म. बट मेल के अंदर ऐसे नहीं होता है, मेल में सभी जो फॉर्म होते हैं वो स्पर्म होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट oogenesis. देन द नेक्स्ट पार्ट आल्सो, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया देखो oogenesis के बारे में. द ओवम सो फॉर्म फंक्शन एज अ फीमेल गैमेट एंड इट इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन. और फिर ये जो फॉर्म हुआ है ओवम वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो गया. देन द नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू एंड कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन गो हैंड इन हैंड. मतलब दोनों भी प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा. जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन होगा मतलब स्पर्म का एंट्री सेकेंडरी oocyte में होगा, तो उसी टाइम वो जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन भी साथ में ही होगा. If the secondary oocyte does not receive the sperm, अगर उस टाइम में सेकेंडरी oocyte को अगर स्पर्म नहीं मिला, so ultimately is shed off along with the menstruum. Means menstrual cycle के टाइम जब ब्लीडिंग होगा तो उस मेंस्ट्रुम के साथ ही ये जो एग है अनफर्टिलाइज वो क्या हो जाएगा, फीमेल के बॉडी से बाहर आ जाएगा. सो